We use our position to damage pastors. हम हमारी कुर्सियों का इस्तेमाल करके पासवानों से खेलते हैं, But God has not called us for that. लेकिन परमेश्वर ने वो खिलवाड़ करने के लिए हमें नहीं बुलाया। I pray that in the assemblies of God we will raise up many more leaders so that assemblies of God will leave all the politics and we will pray presence of the Holy Spirit and we will move in the anointing of the Holy Spirit. मेरी प्रार्थना है कि असेंबलीज ऑफ गॉड में बहुत सारे अगुवे तैयार होकर आगे आने पाए, कि असेंबलीज ऑफ गॉड राजनीति को छोड़कर प्रार्थना करने में जुट जाएं और बहुत सारे ऐसे लोगों को तैयार करके आगे लेकर आए कि बेदारी में बढ़ सकें। 190 churches in Punjab. 190 कलीसियाएं पंजाब में। We pray that soon we will have 350 churches. और हम प्रार्थना करते हैं जल्दी से 350 कलीसियाएं कलीस भारत पंजाब में होंगी। God wants us to multiply. परमेश्वर चाहता है हम बहुगुना बढ़े। The Lord said to Adam and Eve, multiply and replenish the earth. परमेश्वर ने आदम और हव्वा को कहा कि बढ़ते जाओ, फूलते फलते जाओ। Jesus came to the world. यीशु जगत में आया। He trained 12. उसने 12 को तैयार किया। Then 70. उसके बाद 70, 120. 120, 3,000. 3,000, 5,000. 5,000। Entire Asia was touched by the blood of Jesus. पूरा एशिया यीशु के लहू के द्वारा छुआ गया। We all must rise up for God. हम सबको परमेश्वर के लिए खड़े होना है। All of us go through pain and hurts in the ministry. हम सब सेवकाइयों की चोट में, दर्द में से होकर गुजरते हैं। But remember, लेकिन याद रखें, God will be with us. परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। Somebody shout a hallelujah. कौन कहेगा हालेलुया? The Punjab secretary said, we need churches in Punjab. You are the secretary, right? Assistant superintendent. You said you need churches in Punjab. पंजाब के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ने कहा कि आपको पंजाब में कलीसियाएं चाहिए। How much it will cost to build a small church? एक छोटी कलीसिया को बनाने का खर्चा कितना होता है? Without the land, if you have the land. So you have how many lands? कितनी जमीनें हैं? You have 10 lands. And each land to build a church will be 8 lakhs. Okay, we will build 5 churches for you. आपके लिए हम 5 कलीसियाएं बनाएंगे। God will help us. परमेश्वर हमारी मदद करेगा। We don't know how. हमें नहीं पता कैसे होगा। My secretary will say, Pastor Paul, you said 5. How? और सेक्रेटरी कहेंगे, पास्टर पॉल आपने कहा 5 कैसे? But we will sacrificially give you. लेकिन हम आपको त्याग के साथ जरूर देंगे। So we want you to use the money also very carefully. इसलिए जो पैसा मिलेगा उसका सावधानी से उपयोग कीजिएगा। No coffee, no tea, no lunch with our money. उसमें से कॉफी नहीं पीनी, चाय नहीं पीनी, लंच नहीं खींचना। With our money only building. उस पैसे से केवल इमारत बननी चाहिए। Okay? ठीक है? So we will send you first church money first. और पहले कलीसिया का पैसा हम पहले आपको भेज देंगे। You build it, then I'll send the next one. पहली बना लो, दूसरी का भेजेंगे। But I want you to give me a project plan today itself. लेकिन आज ही अपने प्रोजेक्ट की पूरी योजना हमें दे दें। We will build churches in India for God. हम परमेश्वर के लिए भारत में कलीसियाएं बनाएंगे। India must rise up by Jesus Christ. यीशु मसीह के लिए भारत उठ खड़ा हो जाए। I want every one of you to stand up to your feet. कृपया सब लोग खड़े हो जाएं।
And I want to read a portion and then I'm going to pray for you. मैं एक वचन का भाग पढ़कर आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। 2 Timothy chapter 4 verses 9 to 17. दूसरा तिमुथियुस 4 का 9 से 17। I wanted all my pastors to speak today because I want you to know what we are doing in our district. मैंने इसलिए पासवानों को आकर आपसे ये सब कहने को कहा क्योंकि जानना बताना चाहता था हम हमारे डिस्ट्रिक्ट में क्या करते हैं। I want to challenge all of you today. आज मैं आप सबको चुनौती देना चाहता हूँ। Spend more time in prayer प्रार्थना में ज्यादा समय बिताओ and less time with people. और लोगों के साथ कम समय बिताओ। Don't go house visiting every day. हर दिन हाउस विजिटिंग के लिए मत जाओ। House visiting will not build your church. हाउस विजिटिंग करने से कलीसिया नहीं बनती है, But visiting God will build your church. लेकिन परमेश्वर की ओर विजिटिंग करने से कलीसिया बढ़ती है। Go and spend every day 5 hours in the presence of God. हर दिन 5 घंटे परमेश्वर की उपस्थिति में बिताएं। Eat less, sleep less, and pray more. कम खाएं, कम सोएं, ज्यादा प्रार्थना करें। We must reach India for Jesus Christ. हमें यीशु के लिए भारत को बचाना है। My doctor told me, मेरे डॉक्टर ने मुझसे कहा, Reverend, you have to sleep at least 8 hours. रेवरेंड आपको कम से कम 8 घंटे सोना जरूरी है। So I told my doctor, मैंने डॉक्टर से कहा, even people who have slept 8 hours have died. 8 घंटे सोने वाले भी तो मरे हैं। So don't tell me to sleep 8 hours. इसलिए 8 घंटा मुझे सोने को मत कहिएगा। I asked my doctor how many hours you sleep. मैंने डॉक्टर से पूछा आप कितने घंटे सोते हैं? He said 9 hours. उन्होंने कहा 9 घंटे। I asked him, are you sick? तो मैंने बोला आप बीमार हो गए क्या? We can't take too much time to sleep. हम नींद के लिए ज्यादा समय नहीं ले सकते हैं। Before I came here, मैं यहाँ आने से पहले 2 days, 2 दिन I had slept only 7 hours. केवल मैं 7 घंटे ही 2 दिन में कुल मिलाकर सोया। Lot of work, lot of prayer, lot of preparation. बहुत सारा काम, तैयारी, प्रार्थना में लगा रहा। So many things to do for God. परमेश्वर के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। Many a times God will wake you up in the night. कई बार परमेश्वर रात में आपको जगा देता है। Tune your ears to the voice of God. अपने कान को परमेश्वर की आवाज की धुन में लगा ले। Position will come, position will go. कुर्सी आएगी, आते ही चली जाएगी। People will be, people will be there and people will leave. लोग आएंगे और चले जाएंगे, But the presence of God will be with you forever. लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति सदा तुम्हारे साथ रहेगी। Somebody clap and praise Him. लोग ताली बजाकर उसकी स्तुति करेगा। Hallelujah. हालेलुया। I always wondered, मैं हमेशा ये सोचकर चकित रहता हूँ, God never forgave Saul, परमेश्वर ने शाऊल को क्षमा नहीं किया, but God always forgave David. लेकिन दाऊद को हमेशा क्षमा किया। I was very curious. मैं जानना चाहता था Why God always forgave David and never forgave Saul? दाऊद को क्यों माफ करता था, शाऊल को क्यों नहीं किया? You know, the Bible never says बाइबल कहीं नहीं कहती that Saul was with the sheep playing the harp and writing songs. कि शाऊल कभी भेड़ों के साथ था, सारंगी बजाता था या गीत बनाता था। All of you read the background of Saul. आप सब शाऊल की पृष्ठभूमि को देखिएगा। Saul never had a background. शाऊल की पृष्ठभूमि थी नहीं। A fellow who did not have a background, God is bringing him in the front ground. पर जिसका बैकग्राउंड नहीं था, परमेश्वर उसको आगे का ग्राउंड दे रहा है। What was his plan? उसकी योजना क्या थी? When Saul was going in search of his donkey, जब शाऊल अपने गधे को ढूंढने के लिए जा रहा था, God in Bible never says
Saul went in search of God. और कहीं पर भी बाइबल में नहीं लिखा कि शाऊल परमेश्वर को ढूंढता हुआ गया। Saul was always busy searching for the donkey. शाऊल हमेशा गधे ढूंढने में व्यस्त रहता था, But David was always busy searching for God. लेकिन परमेश्वर को ढूंढने वाला व्यक्ति दाऊद था। I want you to praise him right now. आइए मिलकर उसकी स्तुति करें। And Saul was given to the people because of the permissive will of God. और शाऊल इसलिए लोगों को दिया गया क्योंकि ये परमेश्वर की अपनी इच्छा थी। You know why? पता है क्यों? People said, we want a king. लोगों ने कहा हमें राजा दो, But David was given because of the perfect will of God. लेकिन दाऊद को इसलिए दिया गया क्योंकि ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा थी। But Saul was given because of permissive will of God. परमेश्वर अनुमति देकर शाऊल को दे देता है, But David, perfect will of God. लेकिन अपनी पूरी मर्जी से दाऊद को देता है। Let's move to the perfect will of God. आइए हम भी उसकी सिद्ध इच्छा की ओर चले। Saul gave up. शाऊल हार गया। More than 15 years he was hunting for David. 15 साल से ज्यादा वो दाऊद के पीछा करता रहा शिकार करने के लिए। Bible never says बाइबल कहीं नहीं कहती David was hunting for Saul. कि दाऊद शाऊल के पीछे मारने को पड़ा रहा। Our leadership must change. हमारी अगुवाई बदले। We should not be leaders who will hunt for David. हम ऐसे लीडर न बने जो दाऊदों का शिकार करने में लगे हैं, But we should be leaders who will hunt for God. हमें ऐसे बनना है जो परमेश्वर के पीछे लगे रहते हैं। But Saul always wanted to do his will. लेकिन शाऊल हमेशा अपनी मानी करना चाहता था, But David did the will of the Father. लेकिन दाऊद ने पिता की मर्जी को पूरा किया। David was a broken man, दाऊद टूटा हुआ व्यक्ति था, but Saul was a prideful man. शाऊल घमंडी व्यक्ति था। Whenever God spoke, जब भी परमेश्वर ने बात की, David instantly obeyed. दाऊद ने उसी समय आज्ञा मान ली। But every time when God spoke, लेकिन जब भी परमेश्वर ने बात की, Saul blamed on others. शाऊल दूसरों पर इल्जाम लगाता रहा। Now you see the difference. आप अंतर समझ पा रहे I हैं। pray that God will raise up David मैं प्रार्थना करता हूँ यहाँ से दाऊद उठ खड़े हो। in the assemblies of God. असेंबलीज ऑफ गॉड में God will raise up David. परमेश्वर दाऊदों को खड़ा करे। Oh, we will sing songs. हम गीत गाएं, We will praise हम Him. उसकी स्तुति We करें, will worship हम Him. उसकी आराधना We will करें, honor Him. हम उसको हाल सम्मान We दें, will pray for the sick. हम बीमारों के लिए प्रार्थना We will करें, cast out demons. हम दुष्ट आत्माओं को निकालें, We will raise the dead. हम मृतकों को जिंदा करें। Every pastor हर पासवान who with the power of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में चले, Punjab will be touched. पंजाब अवश्य वो छुएगा। Assemblies of God in Punjab. असेंबलीज ऑफ गॉड पंजाब में We declare 350 churches. हम 350 कलीसियाओं की घोषणा करते हैं। Somebody for 1 minute clap and praise God. 1 मिनट के लिए ताली बजाकर अन्य भाषा में बोलना शुरू करें। Pray, pray, pray. प्रार्थना शुरू करें। Pray right now. अभी प्रार्थना शुरू करें। Pray in the name of Jesus. यीशु के नाम में प्रार्थना शुरू करें। By the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में, By the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में, By the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में We pray right now. अभी मिलकर प्रार्थना करें। That God will fill us. परमेश्वर हमें बनाए। The fire. Fire. Fire.
I want to tell you something. मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। When I started to give to God's kingdom, जब मैंने परमेश्वर के राज्य के लिए देना शुरू किया, I actually had no money. मेरे पास पैसा नहीं था। When I was studying in the Bible college, जब मैं बाइबल कॉलेज में पढ़ रहा था, my daddy will send me 25 rupees a month. एक महीने में मेरे डैडी 25 रुपए भेजते थे And put 5 rupees tithes. और 5 रुपए उसमें दशमांश देता। 20 rupees, 20 रुपए I will go check all the students who do not have soap, toothpaste, I'll buy and give them. मैं जाकर सभी विद्यार्थियों के पास ये देखता, किसके पास साबुन नहीं है, ये नहीं है, उनको मैं दे देता। And I will never go on Saturdays to the city, but I'll have no money. शनिवार को मैं शहर में खरीदारी या मनोरंजन के लिए नहीं जाता, क्योंकि पैसा नहीं होता था। So I'll take the guitar and the Bible, I'll go to a jungle there. Whole day I will play the guitar, read the Bible, and I'll keep praying. मैं गिटार लेकर बाइबल लेकर जंगल में चला जाता और पूरा दिन गिटार बजाकर आराधना और प्रार्थना में समय बिताता। My mummy used to send me pickle, one big bottle. और मेरी मम्मी अचार का की बोतल भेजा कर डब्बा भेजती थी। We were 105 students. हम 105 विद्यार्थी थे। On the first day itself, my pickle bottle will be over. पहले ही दिन अचार का डब्बा खत्म हो जाता, Because I will go and give it to all the 105. क्योंकि इस पूरे 105 छात्रों को मैं ये दे देता। I will never eat alone. अकेला कभी भी मैं नहीं खाता। My mommy will send a letter, that England letter, blue color. और पहले के जमाने के नीले इंग्लैंड लेटर, आपको पता, अंतरराष्ट्रीय राज्य पत्र वो मुझे मिलते थे। I'm sure you finished your pickle bottle in one day, give it to everybody. और वहाँ पे मम्मी लिखकर भेजती थी, मुझे पक्का पता है एक ही दिन में खत्म हो गया होगा, तू सबको ये बांट देना। She'll stitch and give me 2 pants, 2 shirts. और वो 2 पैंट और 2 शर्ट सिल कर देती थी। And then she will tell me, और उसके बाद वो कहती, don't go give it to somebody. किसी को जाकर दे मत देना। Giving is not because we have. देते इसलिए नहीं क्योंकि हमारे पास है। Giving is our heart. हम देना दिल को देकर दिखाते हैं। One day in the ministry, एक दिन सेवकाई में 5-7 days I had no food, 5-7 दिन मेरे पास भोजन नहीं था, no money, पैसा नहीं था, no offering. ऑफरिंग नहीं थी। So I was starving, I was drinking water and sleeping. मैं भूख में था, पानी पीकर सो जाता था। One day somebody came and gave me money. और एक दिन कोई आया, मुझे पैसे दिए। And they said, go buy, eat something. उन्होंने कहा कि जाकर कुछ खा लेना। So I bought a lot of food and I kept to eat. और मैंने बहुत सारा खाना खरीदा और वहाँ रखा कि मैं खाऊं। But beggar came outside my house. मेरे घर के बाहर एक भिखारी आया। And he said, Ayya, उसने आकर कहा, अय्या, 3 days I have not eaten. 3 दिन से कुछ नहीं खाया। I have not eaten 7 days. मैंने 7 दिन नहीं खाया था। The beggar has not eaten 3 days. भिखारी तो 3 दिन से उसने नहीं खाया था। Now how to tell him I have not eaten 7 days? तो अब उसको कैसे बताऊं, अय्या मैंने भी नहीं खाया। I took the whole food. मैंने पूरा खाना लिया। I gave it to him and I went and slept. उसको जाकर दे दिया, खुद जाकर सो गया। Giving doesn't come because we have. देना इसलिए नहीं होता क्योंकि है हमारे पास। Because I have money, I don't give. हमारे पास पैसा है, मैं नहीं देता। Giving comes because of a heart, giving heart. दिल देने वाला होता है।
तभी हम दे पाते हैं। Even now I told you, we will send you money. अभी मैंने आपको कहा कि हम आपको पैसा भेजेंगे, Not because we have, इसलिए नहीं कि हमारे पास में है, but now we will go and pray. लेकिन अब क्या करेंगे, हम जाकर प्रार्थना करेंगे, God will give. परमेश्वर देगा। One day when DGS Dhanagaran uncle came, एक दिन जब बीजीएस दिनकरन अंकल आए, I love to honor men of God. परमेश्वर के सेवकों को मैं सम्मान करना अपनी पहचान बनाता I हूँ। arranged all his meetings. उनकी सारी मीटिंगों को मैंने तैयार किया, The morning was his flight, Indian Airlines. और सुबह उनकी फ्लाइट थी, इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट। So I told David, मैंने डेविड से कहा, take all the money from the bank बैंक में से सारा पैसा निकाल लो and we will give it to uncle. और अंकल को दे देंगे, Because he is a big man of God. क्योंकि परमेश्वर के इतने बड़े जन है वो। So I took all the money, मैंने सारा पैसा निकाला I gave it to him. और अंकल को दे दिया। As soon as the plane went up, और जैसे ही उनका जहाज उड़ा, I asked David, मैंने डेविड से पूछा, how much is in the bank? बैंक में कितना बचा है? He said, nothing is there. You only told take everything. उन्होंने कहा कैसे बचेगा, आपने तो बोला सब कुछ निकाल लो बाहर। So I told him, मैंने उनसे कहा, come, we'll go to church, sit and pray. आओ हम चर्च में चलते हैं, जाकर प्रार्थना में समय बिताएंगे। But God has never let me down. लेकिन परमेश्वर ने मुझे कभी भी नीचा नहीं होने दिया, God has never let me down. परमेश्वर ने कभी मुझे शर्मिंदा नहीं होने दिया। I have never built churches in India because FGAG has money. मैंने इसलिए भारत में कलीसिया नहीं बनाई क्योंकि FGAG में पैसा है। Every time whatever we get, we give it to God's kingdom. We build God's kingdom. और जब भी हमें कुछ मिलता है, हम राज्य के लिए देते हैं और राज्य बनाते हैं। I never kept money. I kept giving to God. मैंने कभी भी पैसा अपने पास नहीं रखा, हमेशा देता रहा। We don't have FCRA number. हमारा विदेशी मुद्रा का नंबर नहीं है। We don't have anybody supporting us. कोई भी हमारी मदद स्पॉन्सर नहीं करता है। Our help comes from God. हमारी मदद ऊपर परमेश्वर से आती है। Our help comes from God. हमारी सहायता परमेश्वर से आती है। I believe that we are praying for Punjab. मैं विश्वास करता हूँ हम पंजाब के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। I believe that God is going to touch Punjab. परमेश्वर पंजाब को जरूर छुएगा। I believe that God is going to pour out His mighty anointing over Punjab. पंजाब के ऊपर परमेश्वर अपना बड़ा अभिषेक अवश्य भेजेगा। When we all give lavishly, जब हम खुल कर देते हैं, the kingdom of God will be built. परमेश्वर का राज्य बनता है। 21 days, 21 दिन we prayed once. हमने प्रार्थना की, All church prayed. पूरी कलीसिया ने प्रार्थना की। And I told them, और मैंने उनसे कहा, I want to buy lands for Karnataka. मैं कर्नाटक के लिए जमीनें खरीदना चाहता हूँ। I needed a land, मुझे खुद जमीन की जरूरत थी, but I didn't buy for me. मैंने अपने लिए नहीं खरीदी। I said, we will buy for Karnataka. मैंने कहा कर्नाटक के लिए हम खरीदेंगे। And Sunday I told people, उसी रविवार को मैंने लोगों से कहा, I don't want post-dated checks. मुझे बाद की तारीख के चेक मत देना, I don't want saying every month I will give so much. और ऐसा भी मत कहना हर महीना इतना इतना दे दूंगा। I want you to give cash. मैं चाहता हूँ कि आप नगद दे, रोकड़ा दे। If you can't give, don't give. नहीं दे सकते मत दो। So we took offering. हमने ऑफरिंग ली। Offering came to almost 5 crores. ऑफरिंग 5 करोड़ की निकली। I'm telling you. मैं आपको बताता हूँ। At that time I had hardly 5,000-6,000 people in my church. और उस समय मेरी कलीसिया में 5 या 6 हजार लोग ही थे। I took all the money मैंने सारा पैसा लिया and I bought lands in और Karnataka. कर्नाटक में जमीनें खरीदी। I could have used that money to buy a land for me. मैं अपने लिए जमीन खरीदने के लिए इस्तेमाल कर सकता था उसका, Giving doesn't come because we have. क्योंकि हमारे पास है, उससे हम नहीं देते हैं। My auditor told me, मेरे ऑडिटर ने मुझसे कहा, he's a Hindu. वो हिंदू है, He said, if you had kept all your money in the bank without building churches in India, यदि भारत में कलीसिया बनाए बगैर अपना पैसा बैंक में ही रखे रहते, today you will have 400 crores. तो आज आपके पास 400 करोड़ की रकम होती। Crow will fly.
कुआं उठता है, but the church will build. लेकिन कलीसिया हमें बनती है, बढ़ती है। I want to challenge all of you. मैं आप सबों को चुनौती दूं, Rise up to give in Punjab. पंजाब में भी देने वाले उठ खड़े हो जाएं Rich people give to the kingdom of God. और लोगों को देने का सिखाए और उसका राज्य बनाए। 40% Punjabis are rich people. 40% पंजाबी लोग अमीर हैं। Get them to church. उन्हें कलीसियाओं में ले Let आओ, them come. वे आने पाए, Let them be washed by the blood of Jesus. वे यीशु के लहू से धुलने पाए, Let churches be built. कलीसियाएं बनने पाए। I want to tell you, मैं आपको बताऊं, one day I called Pastor Mohan uncle. एक दिन मैंने पास्टर मोहन अंकल को बुलाया। I call him uncle मैं उन्हें अंकल कहता हूँ because he's my uncle. I'm related to him. क्योंकि वो मेरे वास्तव में रिश्ते में अंकल हैं। He called me and he said, और उन्होंने मुझे कहा, Paul, we all built our church, हम सब अपनी कलीसिया बनाते हैं, but you are building churches for others. लेकिन आप दूसरों के लिए कलीसियाएं बना रहे हैं। I said, that is my passion. मैंने कहा वही मेरा जुनून है। Everywhere churches must come. हर जगह कलीसिया बनने Even पाए। a small church. एक छोटी भी क्यों न हो, If you don't have a church, कलीसिया वहाँ नहीं है, build a small church एक छोटी कलीसिया बनाओ and build your congregation. और कलीसिया की संख्या बढ़ाना शुरू करो। And then build your own big church. और जब लोग आना शुरू होए तो खुद की कलीसिया बड़ी बनाओ। Arunachal Pradesh. अरुणाचल प्रदेश, I told pastors there. मैंने वहाँ के पास्टरों को कहा, I give you one idea in the mountain. मैं आपको पर्वत पर एक अच्छा विचार देता हूँ। I will buy you containers. मैं आपके लिए कंटेनर खरीदूंगा। You have seen that big container? आपने बड़े बड़े कंटेनर देखे होंगे। You have seen that in the truck, it goes huge container. आप देखेंगे ट्रक के पीछे बड़े बड़े कंटेनर जाते हैं। I said, I'll buy you and give you container. मैंने कहा कि मैं आपके लिए कंटेनर खरीद कर दूंगा। You paint. आप उस पर पेंट करना, Put the name of Assembly of God. असेंबली ऑफ गॉड का नाम छापना Start the church there. और उसके अंदर कलीसिया शुरू करना। And after you build, और इसके बाद जब आप अपना बना लो, buy your land and build a church. अपनी खुद की जमीन खरीद कर अच्छा सा भवन बनाना। Everywhere temples are built. हर जगह मंदिर बनाए जा रहे We हैं, will build churches. लेकिन हम कलीसियाएं बनाएंगे। Somebody praise Him. कौन उसकी स्तुति करेगा? Somebody praise Him. कौन उसकी स्तुति करेगा? By the power of Jesus. यीशु मसीह की सामर्थ्य में। We're going to sing that song, हम ये गीत गाएंगे, Atma song. And then we are going to pray. इसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। I want to put my Instagram and my email ID on the screen. इंस्टाग्राम और ईमेल आईडी आपके सामने यहाँ पर है। You can go into my Instagram. आप मेरे इंस्टाग्राम में आ सकते हैं। You can follow us. आप फॉलोअर्स बन सकते हैं। My Instagram is @PaulTangia. @PaulTangia मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है। My email ID, मेरी ईमेल आईडी भी है वहाँ। that's my email ID. ये है मेरी ईमेल आईडी। Pastors, if you are struggling in your ministry, यदि आप अपनी सेवकाई में कठिनाइयों में से होकर जा रहे हैं and you need a break, और आपको बीच में से लगता है कि मैं छुट्टी ले लूं या निकल जाऊं, come to Bangalore. बेंगलोर में छुट्टी लेकर आ जाओ। Stay with us. हमारे साथ रहो। 5 days, 10 days. 5 दिन, 10 दिन Stay free, everything free. वहां पर आकर रहो, सब कुछ फ्री है। Bring your family. अपने परिवार को लेकर आओ। One lady came and recently, हाल ही में एक बहन आई। she told me, my sister, my brother, myself, we 3 of us sat together and we wanted to give this land to somebody. और उन्होंने कहा कि मेरी बहन, मेरा भाई, हम तीनों बैठे और हमने प्रार्थना की कि ये जमीन हम किसी को देना चाहते हैं। So we 3 of us wrote
in a piece of paper. हम तीनों ने एक कागज के टुकड़े पर लिखा Whoever we wanted to give. कि हम किस किस को ये देना चाहते हैं। All three wrote my name. उन तीनों कागजों में मेरा नाम लिखा उन्होंने। 2.3 acres. और 2.3 एकड़ की जमीन, 42 crores. 42 करोड़ की जमीन They just gave it me. उन्होंने ऐसे ही मुझे दे दी। I built a prayer center there. मैंने वहाँ पे प्रार्थना का एक सेंटर खोला। I built 21 rooms to stay. वहाँ 21 कमरे रहने के मैंने तैयार किए। A nice dining room. एक अच्छा भोजन का कमरा, 100 people can eat at one time. जहाँ एक बारी में 100 लोग बैठकर खा सकते हैं। Nice prayer garden I made. और एक अच्छा प्रार्थना का बगीचा तैयार किया। I call it Garden of Gethsemane. और मैं उसको गत्समनी बाग का नाम मैंने दिया है। I put lights all over. और पूरे वहाँ पे रोशनियां लगाई हैं। If you are fed up with your ministry, यदि सेवकाई में आप थक चुके हैं, you need a break, आपको एक ब्रेक चाहिए, come. आ जाइए। Everything free. Breakfast, lunch, dinner, stay, everything free. वहाँ पर रहना, 3 समय का खाना सब फ्री है। We'll give you soap, toothpaste, everything. आपको साबुन, टूथपेस्ट वो सब भी देंगे। And you can stay there, enjoy your time. वहाँ पर आप रह सकते हैं, समय का आनंद ले सकते हैं। We go there and we pray for hours. हम वहाँ पर जाकर घंटों प्रार्थना में समय बिताते हैं। Now I am going to make that huge hall soundproof. अब मैं पूरे हॉल को साउंड प्रूफ बनाने जा रहा हूँ। Because I want to conduct Bangalore all night prayer. क्योंकि मैं बेंगलोर पूर्ण रात्रि प्रार्थना वहाँ पे करना चाहता हूँ। Not Assemblies of God all night prayer. असेंबलीज ऑफ गॉड ऑल नाइट प्रेयर नहीं, Bangalore city all night prayer. बेंगलुरु शहर ऑल नाइट प्रेयर। I want all denominations to come. मैं चाहता हूँ कि सारे संगठन वहाँ पर आए। I want all of them to pray all night. सब लोग मिलकर पूरी रात प्रार्थना करें। The Holy Spirit will give us India. पवित्र आत्मा हमें भारत देगा। God will give us this nation. परमेश्वर ये राष्ट्र हमें जरूर देगा। I want you to praise Him right now. आइए मिलकर उसकी स्तुति करें। Prakash, you gave the books. Prakash, where are you? You gave the books. Okay, we're going to pray together. हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। We have the anointed oil, हमारे पास अभिषेक का तेल है and I want the pastors to come. और पास्टर्स आप आगे आ सकते हैं। And I want you to go and put for everybody. और हर एक के ऊपर आप लगाकर प्रार्थना करें। Touch this oil and put it on everybody. और हर एक के ऊपर ये तेल आप लगाएं। Just touch it and go and put for everybody. हर एक के ऊपर लगाकर आप प्रार्थना करें। Go and put it for people. लोगों के ऊपर लगाना शुरू करें। Put it on their head. उनके सिर पर लगाएं। We are going to pray for mighty miracles. हम बड़े चमत्कार की प्रार्थना कर रहे We are हैं। going to pray for supernatural power. हम अलौकिक शक्ति की प्रार्थना कर रहे We are हैं। going to pray for God to be हम glorified. परमेश्वर को महिमा देने जा रहे हैं। Today, आज you will receive a fresh anointing. आप ताजा अभिषेक पाएंगे। A fresh anointing. ताजा अभिषेक पाएंगे। Put it on their head and pray for them. उनके सिर पर लगाकर प्रार्थना शुरू करें। Put it on their head and pray. उनके सिर पर लगाकर प्रार्थना शुरू करें। Everybody, हर कोई receive the oil. आप तेल को लगाएं। I want you to clap and pray. ताली बजाकर उसकी स्तुति करें। Pray in tongues. अन्य भाषा में प्रार्थना करें। Pray in tongues. अन्य भाषा में प्रार्थना By करें। the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में। By the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में। Pray. प्रार्थना करें। Pray. प्रार्थना करें। Touch the people and pray. लोगों को छूकर प्रार्थना करें। Miracles happen. चमत्कार होने पाए। The glory. बुलंद होने पाए। The fire. आग, Fire. आग। Come on, receive. उसे पाए। Receive. आग को पाए। Receive. पाए। Receive the anointing. अभिषेक को पाए। Supernatural anointing. अलौकिक अभिषेक। Every sickness go. सारी बीमारी चली जाए। Every sickness go. सारी बीमारी चली जाए। Fresh anointing. ताजा अभिषेक। Fresh anointing. ताजा अभिषेक। By the power of Jesus. यीशु की सामर्थ्य में। Oh, don't stop.
बिना रुके Don't stop. बिना रुके Come on, everybody. सब लोग मिलकर Receive a fresh vision. उस ताजा अभिषेक पाए, A fresh vision. एक ताजा दर्शन पाए, A fresh vision. ताजा दर्शन In Jesus' name. यीशु के नाम में, In Jesus' name. यीशु के नाम में Your prayer life will change. आपकी प्रार्थना की जिंदगी बदलेगी, Bible reading will change. आपका बाइबल पढ़ना बदलेगा। In Jesus' name. यीशु के नाम में Supernatural miracles आप चमत्कार देखेंगे, will happen in your life. अलौकिक चमत्कार होंगे। Now I want you to turn अब आप मुड़िएगा and I want you to pray for one another. और एक दूसरे के लिए प्रार्थना शुरू कीजिए। Put your hands like this and pray. अपना हाथ उनके कंधों पर रखकर प्रार्थना करें, Come on, come on, come on. करना शुरू करें। एक Put your दूसरे hand के and लिए pray. एक दूसरे पर हाथ रखकर प्रार्थना शुरू करें। Pray loudly. ऊंची आवाज में प्रार्थना करें। Husband, wife, पति पत्नी other friends. और दूसरे मित्र Come on, pray. मिलकर प्रार्थना करें। God is going to change Punjab. परमेश्वर पंजाब को बदल रहा है। A revival. और बेदारी आ रही है। A revival. बेदारी In Jesus' name. यीशु के नाम में प्रार्थना करें। Pray for Christians. समाचार की प्रार्थना, Pray for healing. चंगाई की प्रार्थना, Pray for spiritual growth. आत्मिक उन्नति की प्रार्थना, Pray for fasting. उपवास की प्रार्थना, Pray for reading the Bible. बाइबल पढ़ने की प्रार्थना, Pray to pray. All night prayer. और पूर्ण रात्रि प्रार्थना के लिए Fire. Aga. Hallelujah. Hosanna. Hallelujah. Hosanna. Hallelujah. Hosanna. Oh, hallelujah. Hosanna. Hallelujah. Hallelujah. Hosanna. Oh, hallelujah. Hosanna. Hallelujah. Hosanna. Hari bol payo. आत्मा आत्मा आत्माएं बरसे वर्षा समान आत्मा आत्मा आत्माएं बरसे वर्षा समान आत्मा आत्मा आत्माएं बरसे वर्षा समान नम्र आत्मा तू है बादल का खंबा तू है नम्र आत्मा तू है बादल का खंबा तू है पानी का सोता जीवन नदी पानी का सोता
अभी जैसे प्रभु की दास हमारे चेयरमैन साहब ने बोला भेड़ी के बारे में, कल और परसों हमने दान लिया।